بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان ڈیڈ لاک ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کے 2 مطالبات مان لیے ہیں۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے، ہمارے نمائندے وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، ڈیڈ لاک ختم ہو گیا تو کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرض ملنے کی راہ ہموار ہو گئی؟ جان اور ایم ایف کے درمیان گزشتہ کئی ہفتوں سے ڈیڈ لاک تھا جو کہ آج ختم ہوا ہے، اور وزارت خزانہ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے ایم ایف کی 2 مطالبات جو ہیں وہ مان لیے ہیں، جبکہ 2 مطالبات نہیں مانے گئے۔ جو مطالبات مانے گئے ہیں ان میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو منی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس میں آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر 300 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ جو منی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا جو ٹیکس ٹارگٹ ہے وہ 4400 ارب روپے سے بڑھا کر 4700 ارب روپے کر دیا جائے گا۔ اس طرح 300 ارب روپے کے لگ بھگ نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے، جبکہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے اوپر آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ تھا کہ سرکولر ڈیٹ کو مرحلہ وار ختم کیا جائے، اور اس سلسلے میں حال ہی میں حکومت پاکستان نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا ہے، جبکہ آئی ایم ایف کو اب یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا۔ 2 ایسی شرائط ہیں جو کہ پاکستان اب تک نہیں مانا، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان 2 شرائط کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اس میں جو روپے کی قدر ہے اس کے اوپر پاکستان کا یہ موقف ہے کہ اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کنٹرول کرے گا اور اس کو مزید ڈی ویلیو نہیں کیا جائے گا، اگرچہ آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ ہے کہ مزید روپے کو ڈی ویلیو کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ ہے تو کہ شرائط آئی ایم ایف کی مان لی گئی ہیں۔ بہت شکریہ، وقاص عظیم اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اہم خبر کہ ملکی تاریخ کا بڑا ٹیکس چوری سکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ 533 بلڈرز نے ملکی خزانے کو زور کا جھٹکا لگا دیا۔ 4 سال میں 94,000 ارب روپے کی ٹیکس چوری کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈیٹر جنرل نے ایف بی آر اور بلڈرز گٹھ جوڑ سے پردہ اٹھا دیا۔ اسی بارے میں تفصیلات کے لیے وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ ملکی خزانے کو بلڈرز کا بھی زور کا جھٹکا، ہزاروں ارب روپے کی ٹیکس چوری کا اسکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ جی ہاں، 4 سال میں 94,000 ارب روپے ٹیکس چوری کر کے بچائے گئے۔ آڈیٹر جنرل کی خصوصی رپورٹ کے مطابق کراچی اور اندرون سندھ کے 533 بلڈرز کا ایف بی آر سے گٹھ جوڑ ہے۔ بلڈرز نے قومی خزانے کو 94,000 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ 2012 سے 2016 تک سینکڑوں منصوبے مکمل کیے، بلڈرز نے خزانے میں ٹیکس جمع نہیں کرایا۔ آڈٹ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایف بی آر کے 6 فیلڈ دفاتر نے بلڈرز کو ٹیکس چھوٹ دی۔ آر ٹی او حیدرآباد اور سکھر نے بلڈرز کے ذمہ ٹیکس کا حساب ہی نہیں کیا۔ 2010 میں کراچی کے آر ٹی او 2 اور 3 میں 1725 ارب روپے کی ٹیکس چوری کی گئی۔ 2011 میں 5 کروڑ اور 2012 میں 92 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس چوری کی گئی۔ آڈٹ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ قومی خزانے میں ٹیکس چوری کی رقم جمع کرائی جائے اور ٹیکس چوری میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔ وقاص عظیم کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ وقاص ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں۔ وقاص، 94,000 ارب روپے کی ٹیکس چوری، ایف پی آر کا کیا موقف ہے اس تمام تر معاملے پر؟ جی، ایف بی آر نے جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو رپورٹ پیش کی ہے اس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جتنا بھی پیسہ ٹیکس چوری کیا گیا ہے اس کو ان بلڈر سے واپس لیا جائے گا، لیکن ایف بی آر نے اس سلسلے میں کوئی عملی اقدامات نہیں کیے کیونکہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جو خصوصی رپورٹ تیار کی گئی ہے بلڈرز کی ٹیکس چوری سے متعلق، اس میں واضح طور پر دیکھا گیا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور جو بلڈرز ہیں ان کے درمیان ملی بھگت ہے، ان کے درمیان گٹھ جوڑ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے قومی خزانے کو تقریباً 94,000 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں آڈیٹر جنرل نے یہ واضح کیا ہے کہ جو لوگ بھی ایف بی آر کے اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور یہ پیسہ قومی خزانے میں واپس کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے اتنا بڑا ٹیکس چوری کا اسکیم منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ یہ 2 سال کی رپورٹ ہے جس میں 94,000 ارب روپے کی بے ضابطگیوں اور ٹیکس چوری کی نشاندہی کی گئی ہے، اور جو 533 افراد ہیں جو کہ بلڈرز ہیں جو کہ پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں، لیکن ٹیکس چوری کی یہ رپورٹ صرف اور صرف کراچی اور حیدرآباد اور جو سکھر کے علاوہ اندرون سندھ میں جو پروجیکٹس مکمل کیے گئے ہیں ان سے متعلق ہے۔ جی ٹھیک ہے، کارروائی کی سفارش ہو گئی، دیکھنا یہ ہے عملی طور پر کب ہوتی ہے۔ بہت شکریہ وقاص اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ کی منظوری کے بغیر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا نوٹیفیکیشن کیوں جاری کیا؟ سپریم کورٹ نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا نیا بورڈ بھی تحلیل کر دیا ہے۔ عدالت نے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے اور
29 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ को भी नोटिस जारी किया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बगैर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का नया बोर्ड भी तहलील कर दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अडियाला जेल रावलपिंडी से कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर पहुंचाया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद जेल के बाहर मौजूद रही। नवाज शरीफ को जेल में 2 कुर्सियां, 1 मेज मिलेगी। कमरे में टीवी, बिस्तर, हीटर और अखबार भी मिलेगा। जेल जराये के मुताबिक इमरान खान भी इसी बैरक में 1 दिन गुजार चुके हैं। नवाज शरीफ के लिए बैरक क्लास की मंजूरी दी गई। नवाज शरीफ को कानून के मुताबिक सहूलियात दी जाएंगी। नवाज शरीफ को बैरक नंबर 1 में रखा जाएगा। आसिफ अली जरदारी भी बैरक नंबर 1 में रह चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पनामा पेपर्स और जाली अकाउंट्स की जीआईटी रिपोर्ट्स को रियासतों की नाकामी, कर्ज और गुर्बत में इजाफे के हवाले से एक केस स्टडी करार दिया है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पनामा पेपर्स और जाली अकाउंट्स की जीआईटी रिपोर्ट्स को रियासतों की नाकामी, कर्ज और गुर्बत में इजाफे के हवाले से एक केस स्टडी करार दिया है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पनामा और जाली अकाउंट्स की जीआईटी रिपोर्ट्स केस स्टडीज हैं कि रियासतें कैसे नाकाम होती हैं और किस तरह गुर्बत और कर्ज में डूबती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिस तरीके और पैमाने पर अवाम का पैसा चोरी किया गया वो नाकाबिले यकीन है। उन लोगों पर हैरत और ताजुब है जो ये रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद भी लुटेरों का दिफा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला मुस्तरद कर दिया है। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। करप्शन की बात की गई मगर ये नहीं बताया गया कि किस किस्म की करप्शन की गई। एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। तहरीक इंसाफ वालों को कुछ नहीं कहा जा रहा। बताया जाए अलीमा खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पैसा कैसे बाहर भेजा। एक पिंडी का शैतान है, आप समझ गए। एक पिंडी का शैतान है, कितना खूबसूरत शहर है और इसमें कितना ही बदसूरत इंसान जो है वो इसकी नुमाइंदगी जो है वो करता है। एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुल्क में सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के लेजिस्लेटर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। पीटीआई और पीटीआई के हलीफ एमएनएज और वुज़रा उन पे चाहे कितने संगीन इल्जामात हों उनके लिए हर किस्म की आज़ादी है। हर शोबे में सरकारी अफसर को मैसेज है कि अगर बात को नहीं मानोगे, सर उठाओगे तो घर जाओगे। मीडिया को मैसेज है कि अगर हमारे झूठ की बात करोगे, हमारी चोरी की बात करोगे, हमारी बाजी की चोरी की बात करोगे, अली खान की चोरी की बात करोगे और अगर जहांगीर सलीम की चोरी की बात करोगे तो आप लोगों को उनकी जबान को बंद कर दिया जाएगा। अगर हिटलर माफ़ी चाहता हूँ यू टर्न ले लेता तो तारीख यकसर मुख्तलिफ होती। तो अब हमें लग ऐसा रहा है कि गालिबन ये कोई हिटलर है जिसने यू टर्न लेना सीख लिया है। अगर नवाज शरीफ आपने कहा उनको सजा दे दे बिल्कुल देने, पहले भी दिए। करप्शन साबित हुई नहीं हुई। एफआईए ने कागज जमा अदालत में करवाया है इस्तफसार पे अदालत के कि इस केस में कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। नैब से डिमांड करते हैं और कोर्ट्स से डिमांड करते हैं कि जो सेंस ऑफ अर्जेंसी मियां नवाज शरीफ के केस में और मुस्लिम लीग लीडरशिप के केस में जिसका मुजाहरा हमने देखा पिछले 2-2.5 साल से, वही मुजाहरा हम देखना चाहते हैं। अलीमा खान का अगेन हमारा सवाल यही है कि यहां से पैसे कैसे गए थे और अलीमा खान का हम इसलिए बार बार डिमांड करते हैं कि वो बहन है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर साहब को एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए।
सिंध में करप्शन के खिलाफ क्रैक डाउन हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, और इसी दौरान KPK में वो साइन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के जी एहतसाब कमीशन खत्म है। मतलब कि वहाँ सारे हाजी आप हमें सजाएं दिलवाते हैं तो दिलवाएं, हम सजा काटने को तैयार है। ये एहतजाज जारी रहेगा, पार्लियामेंट में भी होगा, पार्लियामेंट के बाहर भी होगा। हुकूमती टीम का मुस्लिम लीग नून को जवाबुल जवाब। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत हम्माद अजहर कहते हैं कि नून लीग ने नवाज शरीफ पर इल्जामात का जवाब नहीं दिया। इनका सिर्फ एक कारोबार था और वो था करप्शन करना। इनकी मुल्क के बाहर कंपनीज थी ही नहीं, ये सिर्फ कागजी कंपनीज थी। अलीमा खान मनी ट्रेल साबित ना कर सकी तो उनका भी एहतसाब होगा। पाकिस्तान जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लोग क्या सुनना चाहते थे? लोग ये सुनना चाहते थे कि जो कल अदालत के अंदर उनके ऊपर इल्ज़ामात साबित हुए, आखिर उसका कोई जवाब तो दें। जवाब उसका सिर्फ एक आया कि हम तो चोर हैं लेकिन बाकी भी तो सारे चोर हैं। जो पाकिस्तानी मेहनत कश मशरक़ वस्ता के ममालिक में सुबह से लेकर रात तक काम करता है, वो खून और पसीने की कमाई जो है वो वहाँ पे कमाता है और पाकिस्तान वापस भेजता है। जब उन्होंने इक्वेट किया नवाज शरीफ को उससे और कहा कि जनाब वो पैसे वापस भेजना कौन सा गुनाह है, वो तो सारे पाकिस्तान के जो कारकुन हैं वो करते हैं। भाई वो अपनी मेहनत की कमाई दिन रात मेहनत करते हैं और आपको यहाँ पाकिस्तान में भेजते हैं, और आप जैसे हुक्मरान उस कमाई को अपनी रिश्वत सतानियों में और अपने मामलात में डबोते हैं। आवाम को मिसलीड करने की कोशिश की गई कि शायद मियां नवाज शरीफ को इसलिए सज़ा हुई है कि उनके बेटे ने उन्हें पैसे भेजे थे। अगर आप दस्तावेज़ात देखें, जजमेंट देखें तो ऐसे नहीं है। वो रकम, ये कंपनियां अल अज़ीज़िया और हिल मेटल, 88% इनका प्रॉफिट मियां नवाज शरीफ को भिजवाया गया और बाकी जो 10% था वो उनके मुलाजमों को भिजवाया गया। अलीमा खानम जो कि कभी एक पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही हैं, उन्होंने अपनी मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई। हाँ, उन्होंने वो अपने पाकिस्तान की टैक्स रिटर्न में पाकिस्तान के कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की, जिसका उनको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो तमाम टैक्स और जुर्माने की रकम अदा करनी पड़ेगी। अगर वो मनी ट्रेल ना साबित कर सकती, जो कि उन्होंने की, तो फिर उनके साथ भी यही हशर हो रहा होना था जो आज इनके साथ हो रहा है। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे, वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि 30 मार्च से पहले झाड़ू फिरने वाला है। हमारी बदनसीबी है, चोर चौकीदार बन गए, सारी कौम की जेबें काटने वाले मुअज़्ज़ज़ बन गए। इनकी शक्लों पर लिखा है कि ये डिकेट हैं। वो कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। ये है कि मैं 30 मार्च से पहले कहता हूँ झाड़ू फिरने वाला, थोड़ा सा झाड़ू बंदा है, ऐसी थोड़ी सी फनकार मारी है, जैसे पीर नहीं मारते, तिश करके किया है। बाकी ये जाएंगे 30 मार्च से पहले, बाकी चोर भी हैं। इन्होंने सारी कौम के जेबें काटी हैं और मुअज़्ज़ज़ कहला रहे हैं। इनसे बड़ा डकैत और जेब कुतरा है ही कोई नहीं। देखें, इनके करतूत तो पैदाइशी लीक हुए हैं, ये तो बड़े देर से लीक हुए हैं। इनकी शक्लों पे लिखा हुआ है कि दे आर करप्ट, डिसऑनेस्ट, डकैत, थीव। इमरान खान की हुकूमत में हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये सारे चोर, डाकू, लुटेरे कानून और आइन के शिकंजे में आए, और जिस तरह हमने हमारे मुल्क को इन्होंने नोचा और लूटा है, उसी तरह इनको कानून के दायरे में और शिकंजे में लाया। देखें, मुझे इमरान खान से 100% उम्मीद है कि कोई NRO नहीं होगा। रुई की तरह गिरते बर्फ के ये गाले और क्रिसमस की हर तरफ बिखरी खुशियां। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश जहां दुनिया भर में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में भी हर छोटे बड़े चर्च में क्रिसमस की दुआया तकरीबात मुनक्किद की गई। इसी बारे में मानिया शकील की रिपोर्ट देखते हैं।
त्योहार चाहे जो भी हो, खुशियों और रंगों से भरपूर होता है। इसी तरह पाकिस्तान में हर मजहब के हर त्योहार को खुशी से मनाया जाता है। 25 दिसंबर को जहां दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात जोशो खरोश से मनाई जा रही हैं, वहीं कराची के मकामी चर्च में भी क्रिसमस की दुआया रसूमात अदा की गयी, जिसको भरपूर सिक्योरिटी फराहम की गयी। इस मौके पर मॉडल और अदाकारा सुनीता मार्शल का कहना है कि वो बचपन ही से यहीं पली बड़ी हैं, लेकिन मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं माइनॉरिटी में हूँ। मेरा ख्याल है माइनॉरिटी अब एक सिर्फ लफ्ज़ रह गया है, वरना ऐसा कुछ होता नहीं है। इक्वल राइट्स होते हैं सबके। मैं अभी जैसे किसी को कह रही थी कि मैं बचपन से यहीं पली बड़ी हूँ और मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं माइनॉरिटी में हूँ। मसीही बिरादरी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश के मौके पर सबको मुबारकबाद पेश की। I wish everybody a Merry Christmas. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर और मेरे तरफ से हर किसी को मेरी क्रिसमस। गिरजाघरों में गुज़िश्ता चंद रोज से तकरीबात जारी हैं और नए साल की शुरुआत तक जारी रहेंगी। मसीही बिरादरी की जानिब से खुशाइन तरीके से क्रिसमस त्योहार को मना के ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान में सबको हर खुशी मनाने का भरपूर हक है। कैमरामैन एहसन ताहिर के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। मुल्क भर में मसीही बरादरी गिरजाघरों में इबादत के बाद अब घरों में भी क्रिसमस भरपूर तरीके से मना रही हैं। ख़वातीन की क्रिसमस पर अपनी ही हैं ख़ास तैयारियां। हमारे नुमाइंदा मानिया शकील इस वक्त कराची के एक मसीही घराने में मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं। मानिया, क्या मसरूफियात हैं क्रिसमस के मौके पर? जी बिल्कुल, जैसे दुनिया भर में क्रिसमस के त्यौहार को भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, वैसे कराची वाले क्यों पीछे रहे। कराची के मुकीम मसीही बिरादरी के लोग भी खुशी से इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने घर में लोगों ने तैयारियां की हैं। मैं इस वक्त किसी घर में मौजूद हूँ, मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई उनकी क्या तैयारियां हैं और वो किस तरीके से मना रहे हैं ये त्यौहार। ये बताइएगा, सारी तैयारियां हुई हुई है, बहुत माशाल्लाह सब अच्छा लग रहा है। ये जो है आपकी तैयारियां भी नजर आ रही हैं। घर के बड़ों पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्या तैयारियां की है आपने? मैंने सबसे पहले हम चर्च गए, दुआ की, चर्च से आके हमने केक काटा, वो खाया। फिर सुबह मॉर्निंग में उठते ही हमने सारे मेरे जितने भी, मैं क्योंकि बड़ी हूँ, बड़ी होने के नाते मैं अपने सारे पेरेंट्स को बुलाती हूँ, अपने बच्चों को बुलाती हूँ। मैं नानी दादी हूँ, तो सबको गिफ्ट देना लेना सब कुछ करना, केक काटना, खाना बनाना, गिफ्ट देना, ये सब कुछ मेरी होती है। क्रिसमस के लिए हमने बहुत सारी शॉपिंग्स की है, इवन 1 महीने से पहले ही शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी थी, और ज्वेलरी वगैरह सब कुछ। इवन समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लें। बिल्कुल, खवातीन का यही हाल है हर जगह के, चाहे जितना तैयार हो जाए यही कहना होता है कि हम वैसे ही तैयार हो गए, लेकिन शॉपिंग तो लास्ट मिनट तक जारी रहती है। भरपूर मेकअप, ज्वेलरी और भरपूर तैयारियों के साथ ये त्यौहार भी बहुत खुशी खुशी मनाया जा रहा है। जी शुक्रिया मानिया, आगाह कर रही थी। PIA इंतजामिया की जानिब से कायद-ए-आज़म डे और क्रिसमस के मौके पर तैयारों में सफर करने वाले मुसाफिरों गिफ्ट और पैम्फलेट्स तकसीम किए गए। सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक का कहना है कि बाबा कौम की जिंदगी हमारे लिए मशाल राह है, हमें उनके उसूलों को अपनी जिंदगी का नस्फुल ऐन बनाना चाहिए। सदर PIA ने मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि PIA की तरक्की और कामयाबी में उनका किरदार सरे फहरिस्त है। गुजरांवाला में भी मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार जोश खरोश से मना रही है। तफरीगाहों में फैमिलीज और बच्चे भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद इकबाल से। जाहिद, आगाह कीजिएगा, किस तरह से क्रिसमस एंजॉय की जा रही है? बिल्कुल, क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है। दुनिया भर की तरह अगर गुजरात की बात करें तो मसीही बरादरी भरपूर तरीके से क्रिसमस का त्यौहार मनाती दिखाई दे रही है। दिन का आगाज़ दुआया तकरीबात के साथ हुआ, उसके बाद मसीही बरादरी ने अपने अजीज़ों कारब और दोस्त अहबाब से क्रिसमस की खुशियाँ बांटने के बाद जो क्रिसमस बरादरी है वो बड़ी तादाद में अपने बच्चों और फैमिलीज़ के हमरा इस वक्त पार्कों में पहुँची है, जहाँ पर वो खूब हल्ला गुल्ला करती दिखाई दे रही है। अभी भी मेरे साथ एक फैमिली है, उनसे बात करते हैं कि आप ये बताएं कि आज क्रिसमस का दिन है, तो कैसी खुशी महसूस करेंगे? हम बहुत खुश है कि आज का दिन हमारे लिए 25 दिसंबर है, सेलिब्रेट हमने बहुत अच्छे तरीके से किया और हमने सुबह 9 बजे हमने इबादत भी अटेंड की। अब हम अपनी
फैमिली के साथ खुला खुला कर रहे हैं। क्रिसमस की खुशियों को भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है और फैमिलीज के साथ वो पार्क में मौजूद है, खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है, बच्चे झूले झूल रहे हैं, मुनफरद किस्म के खाने जो स्टॉल लगाए हैं, खाने के स्टॉल लगे हैं, उनसे खाना भी खाते दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ अशिया भी खा रहे हैं और आज के दिन को क्रिसमस के भरपूर तरीके से मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। फैसलाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद में भी मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है। खुशियां किस तरह मनाई जा रही हैं जानेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी क्रिसमस की खुशियों को चार चांद लगे हुए हैं। बड़े दिन की बड़ी खुशियां जो हैं उनको मनाने के लिए मसीही भाई जो हैं हमारे बाहर निकले हुए हैं और जितनी भी मुख्तलिफ तफरीही मुकामात हैं वहाँ पर शहरियों का बड़ा रश दिखाई देता है। एक तरफ जो है वो हमारे मसीही भाई क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं तो दूसरी तरफ चूँकि यौम कायद है तो उसके हवाले से भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ तफरीह गाहों में मौजूद है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे सर से बात भी करते हैं। बताइएगा इस दिन को किस तरह जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी खुदा का शुक्र है, बड़ा मज़ा आ रहा है जनाब। क्रिसमस का डे है तो क्रिश्चियन बरादरी जितनी भी है वो इस डे को सेलिब्रेट करती है, तो हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। पूरी फैमिली इस जगह पर मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की स्पेशल सलामती के लिए भी हम दुआगो है। मैडम ये बताइएगा गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो किस तरह के क्रिसमस में इंतजाम देख रहे हैं, खासतौर पर जो तफरीही मुकामात हैं वहाँ की सूरत हाल कैसी है? इस दफ़ा तो काफ़ी वैसे बेहतरी है और सब सिक्योरिटी का सिस्टम अच्छा लग रहा है। इस दफ़ा जब हम यहाँ पे आए तो हम लोग देख रहे थे पुलिस वगैरह काफ़ी तैनात है, तो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ गवर्नमेंट को कि उन्होंने अच्छा सिक्योरिटी का सिस्टम दिया है। तो मैं सबको क्रिसमस विश करना चाहती हूँ आज के इस मौका पर। जहाँ जहाँ पर भी क्रिश्चियन कम्युनिटी मौजूद है उनको हैप्पी क्रिसमस। बहुत शुक्रिया रमजान आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने बलूचिस्तान में कार्रवाई करके क्रिस्टलाइज की स्मगलिंग नाकाम बना दी। शाहजहां रोड पर मशकूक गाड़ी से 75 किलोग्राम आला क्वालिटी क्रिस्टलाइज बरामद करके स्मगलर को हिरासत में ले लिया। बरामद क्रिस्टलाइज की आलमी मंडी में मालियत $6 लाख बताई जा रही है। तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने बलूचिस्तान में ये कार्रवाई की है और क्रिस्टलाइज की स्मगलिंग नाकाम बना दी। शाहजहां रोड पर मशकूक गाड़ी से 75 किलोग्राम आला क्वालिटी क्रिस्टलाइज बरामद करके स्मगलर को हिरासत में ले लिया गया। ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान। कायद आज़म का पाकिस्तान बनाने का दावा करने वाले बाबाए कौम को भूल गए। मुल्क भर में सरकारी सतह पर यौम कायद आज़म की कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की गई। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर, दावे तो बहुत बड़े किए जाते हैं इस पाकिस्तान को बनाने के बाद, इस पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले जाने के, लेकिन सरकारी सतह पर कोई तकरीब नहीं। बिल्कुल, जब भी कायद आज़म का दिन होता है हम बड़े वसूख से और बड़े दावे के साथ और कायद आज़म के बड़े ममनून भी होते हैं और तराने भी बजाते हैं कि यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान। और हम खुद दुनिया को भी हैरान करते रहते हैं और ख़ुद कायद आज़म को भी हैरान करते हैं कि उनको उनके दिन पर भी भूल गए हैं। आज के दिन में अगर ये देखा जाए तो सिर्फ 2 तकरीब हुई हैं, जिनमें एक तकरीब जो मज़ार कायद है जो कराची में है उस पर गार्ड्स की तब्दीली हुई और दूसरी तकरीब जो है वो ज़ियारत में कायद रेजिडेंसी पर हुई। इसके अलावा किसी भी विफाकी दारहुकूमत में और किसी भी सूबाई दारहुकूमत में सरकारी सतह पर किसी किस्म की कोई तकरीब जो है वो मुनक्किद नहीं की गई। वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर इत्तलात तक और बाकी भी वज़रा ने या तो एक बयान जारी करने पर इत्तफा किया या फिर ट्वीट पर जो है वो कायद आज़म को खिराज तहसीन पेश करने की कोशिश की। बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है वो इस हवाले से वजारत इत्तलात की बनती है कि जिसने जो अहम मौक़े होते हैं, कौमी दिन होते हैं, उन पर न सिर्फ ये कि वो
कायद के दिन के उन कौमी दिनों को सरकारी सतह पर मनाने का एहतमाम करे, बल्कि ऐसी तकरीबात और प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं जिनसे जो कौमी हीरोज़ हैं, जो बानियाने पाकिस्तान हैं, उनकी जो तालीमात हैं, उनकी जो जद्दोजहद है, वो आने वाली नस्लों तक जो है वो पहुंचती है। अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं, मुझे और आपको या हमारी जो नस्ल है उनको बानियाने पाकिस्तान के बारे में अगर कुछ मालूम है तो वो या तो तदरीसी कुतब है या फिर PTV एक जरिया हुआ करता था जिससे तो ऐसे दिनों पर भी गफलत का मुजाहरा किया गया है। बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। तो मिल्लत के पासबान बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह की तालीमात को तो भुलाया ही गया था, अब सरकारी सतह पर तकरीबात भी मुनक़िद नहीं हो रही। लाहौर में भी सरकारी सतह पर कहीं भी कायद-ए-आज़म को यौम पैदाइश नहीं मनाया गया। गवर्नर हाउस में होने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में गवर्नर वज़ीर आला पंजाब बतौर मेहमान शरीक हुए। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं कज़ाफ़ी भट्ट से, जो कि इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम हुआ लेकिन कायद के आज के दिन के हवाले से कोई यहाँ पर तकरीब मुनक़िद नहीं की गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है कायदे आज़म बानिए पाकिस्तान की विलादत के मौके पर जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो तकरीब का कोई एहतमाम नहीं किया गया है। गवर्नर हाउस के अंदर भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया, लेकिन वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से जो है उस तकरीब का एहतमाम किया गया था आज, जिसके अंदर जो है गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो है वो मेहमान के तौर पर शरीक हुए। और इस हवाले से पंजाब हुकूमत खामोश है, अगरचे वज़ीर इत्तलात और सकाफत फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है कि इस तकरीब का इनेकाद जो है वो पंजाब हुकूमत ने किया, लेकिन ऐसा कोई भी साइन नहीं है कि उनकी जानिब से आज सारा दिन कोई तकरीब का एहतमाम किया गया हो। बानिए पाकिस्तान की पैदाइश के मौके पर जो है सालगिरह के मौके पर जो किसी भी किस्म का कोई तकरीब का इनेकाद उनकी जानिब से नहीं किया गया है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यौम पैदाइश पर पेशावर में भी सरकारी सतह पर किसी तकरीब का एहतमाम नहीं किया गया। इस बारे में जानते हैं आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब, बताइएगा किसी तकरीब का एहतमाम नहीं किया गया इस हवाले से? जी, मुल्क भर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बड़े पर जहाँ पर तकारीब का इनेकाद की गया, तो इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी कई निजी सतह पर तकारीब जरूर मुनक़िद हुए। तब हम देखा गया कि सूबाई हुकूमत की जानिब से किसी भी तकरीब का अहतमाम नहीं हुआ। इसी तरह वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुकम्मल खामोशी रही। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जो इस वक्त पेशावर में है, मुल्क में है, की जानिब से बयान कदर भी नहीं आया। सरकारी सतह पर मुकम्मल खामोशी रही और ऐसा लगा और ऐसा इस वक्त भी लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमती सतह पर जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बड़े हैं वो मनाई नहीं गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 143वें यौम पैदाइश के मौके पर शहरियों ने बड़ी तादाद में बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ार कायद पर हाजिरी दी। इस बारे में जानते हैं अली रजा से, जो कुछ देर पहले मज़ार कायद पर मौजूद थे। बताएगा अली रजा। जी बिल्कुल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश 25 दिसंबर आज जो है मज़ार कायद से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। गैर मामूली रश हम इस जगह पे देख रहे हैं। अमूमन इस जगह रश होता है, मगर आज जो है मुख्तलिफ लोग अकीदत का इजहार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बच्चे मौजूद हैं मेरे साथ बहुत सारे, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, भाई क्यों आए हुए हो? पाकिस्तान का परचम उठाया हुआ है, क्या क्या किया आज? अस्सलामुअलैकुम। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली 25 दिसंबर को पैदा हुए थे और उन्होंने जदोजहद की थी और हम तो बहुत इंजॉय करने आए हैं। कायद-ए-आज़म ने जदोजहद की थी। जी बिल्कुल, बच्चों का यही कहना है कि उन्होंने यहाँ पर आए और अकीदत का इजहार भी किया और मुख्तलिफ जगहों का जो है वो विजिट भी किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यौम कायद-ए-आज़म पर शहरियों की बड़ी तादाद मॉन्यूमेंट म्यूजियम पहुंच गई। हमारे नुमाइंदे वलीद चौधरी इस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और फातिमा जिन्नाह से आपकी मुलाकात कराएंगे। जी वलीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 142वां यौम पैदाइश जो है वो मनाया जा रहा है। जिस तरह मुल्क भर में इस हवाले से जो तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है, केक काटा जा रहा है, तो इसी तरह इस्लामाबाद में भी जो है वो अब से थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट है उसके म्यूज़ियम में केक काटा गया। इस वक्त ख़ास बात यह है कि हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, जो अपनी हमशीरा फातिमा जिन्नाह के साथ इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये म्यूज़ियम है जहाँ पे जो आज़ादी की तहरीक थी वो किस तरह कायद-ए-आज़म उसका किस तरह हिस्सा थे, कितना उनका अहम किरदार था, किस तरह ये भी आपको दिखाना चाहेंगे कि जो
पहली जो पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली थी उससे जो कायदे आज़म ने खिताब किया वो भी यहाँ पे देखा जा सकता है। उनकी हमशीरा फातिमा जिन्ना भी यहाँ पर बैठी हैं। तो पूरा एक उस वक्त का जो माहौल है वो इस म्यूज़ियम में देखा जा सकता है। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जो पाकिस्तान बनाया ये काम कोई बंदा नहीं कर सकता था सिवाय उनके, और उन्होंने जो है ना ये एक आवाम के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए, सोई कौम के लिए जो है ना उन्होंने एक उजागर की। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रज़ा क्या है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो हमारे साथ एक साहब मौजूद थे, उनका ये कहना है कि कायदे आज़म का इस पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए जो है वो बड़ा अहम किरदार रहा। जो कायदे आज़म की ज़िंदगी से मुंसलिक जो इनकलेब है, जो यहाँ पर इंतज़ाम है, उसको देख कर जो है वो लोग बड़े महजूज हो रहे हैं। जी मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। बदीन में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी के हवाले से पीपल्स यूथ विंग की जानिब से शाहनवाज चौक से बदीन प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसके बाद दिए भी रोशन किए गए। रैली निकाली गई है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 11वीं बरसी के हवाले से। पीपल्स यूथ विंग की जानिब से इस रैली का इनेकाद किया गया था। शाहनवाज चौक से बदीन प्रेस क्लब तक ये रैली निकाली गई और उसके बाद दिए भी रोशन किए गए हैं। आपको बताते चलें कि बदीन में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी के हवाले से पीपल्स यूथ विंग की जानिब से शाहनवाज चौक से बदीन प्रेस क्लब तक ये रैली निकाली गई। मनाजिर में भी आप देख सकते हैं रैली का इनेकाद किया गया, जिसके बाद दिए भी रोशन किए गए और दुआ भी की गई।